تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان صاحب کے لیے مشکلوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور یہ مشکلات جو ہیں تحریک انصاف کے رہنما جان بوجھ کے پیدا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، یا عمران خان صاحب کی قسمت بری ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور زین قریشی صاحب جو ہیں وہ کوئی تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اندر کی خبر ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور تیسری یہ چیز کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت نے دھوکہ دے دیا ہے اور اپنی بات سے حکومت مکر گئی ہے۔ ایک اور معاملے کے اوپر آخر میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں، کس طرح سے وہ رہائی کروائی گئی ہے، کیا تحریک انصاف نے کوئی کمپرومائز کیا ہے یا اس کے بدلے تحریک انصاف کو کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ ان سارے معاملات کے اوپر بات کریں گے۔ اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اب آتے ہیں اپنے سب سے پہلے مدعے کی جانب کہ تحریک انصاف نے کیا تحریک انصاف کی جو مین قیادت ہے اس وقت جو باہر ہے، جس میں بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں اور دیگر رہنما ہیں جو اس وقت لائم لائٹ میں ہیں، انکلوڈنگ علی امین گنڈاپور صاحب، اس کے حوالے سے مزید خبریں چل رہی تھی کہ وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ خبروں کے حوالے سے، اندازوں کے حوالے سے، تجزیوں کے حوالے سے تو آپ کے پاس مختلف اطلاعات مختلف لوگ دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کیلکولیٹڈ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کو کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا، جس سے چیزیں جو ہے ایویڈنٹ ہو جائیں گی کہ یہ جو رہنما ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کس قدر آنیسٹ ہیں، کس قدر سنسیئر ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں، ان کے حوالے سے مختلف وقتوں میں مختلف شیما گوئیاں چلتی رہتی ہیں، اور اس وقت بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کیا جو بھی رہنما تحریک انصاف کے اندر گئے تھے ان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے باہر آ کے کلیئر بات نہیں بتائی عوام کو، اور عوام کو عمران خان صاحب کے اصل فیصلوں سے، اصل موقف سے آگاہ نہیں کیا گیا تاکہ ان کی عزت بھی کچھ باقی رہ جائے۔ اندر یہ ہوا تھا کہ اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اندر یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ مسودہ لے جانے کے اوپر تمام رہنماؤں کی سخت سرزنش کی اور سخت الفاظ میں ان سب کو ڈانٹا کہ جب میں نے کلیئرلی ایک چیز سے انکار کیا ہے کہ آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بننا، تو آپ کوئی مسودہ مولانا صاحب کے ساتھ کس طریقے سے طے کر کے آئے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنے طور کے اوپر اس مسودے کے اوپر اگری کر کے آئے ہیں، کیونکہ پرنسپلی تو تحریک انصاف کا موقف ہی الگ ہے۔ پرنسپلی تو تحریک انصاف منصور علی شاہ صاحب کو سینیورٹی کے پرنسپل کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اس وقت جو تحریک انصاف نے جو کیا، سوالیہ نشان تو سب سے بڑے اس کے اوپر ہیں۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف نے عمران خان صاحب سے ملنے کی شرط ہی اس لیے رکھی تھی کہ یہ کلیئرلی بتایا جائے کہ عمران خان صاحب سے اپوزیشن حکومت جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون جو ہے انہیں ملنے کی اجازت نہیں دے گی، اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ ان کی غیر موجودگی میں تحریک انصاف کو فیصلہ لینا پڑے گا اور اس کے اوپر ووٹنگ کروانی پڑے گی۔ تو اس پوری صورتحال میں ہونا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف اس آئینی ترمیم میں حصہ لیتی، لیکن چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لچک دکھائی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کی میٹنگ کروائی، تو وہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ
तहरीक इंसाफ पहले दिन से इस असम्बली के ही जो उनका मैंडेट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो उसके ज़रिए आइनी तरमीम को किस तरह से एक्सेप्ट करती, ये बड़ा सवालिया निशान है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो दीगर फैसले भी हैं उसके ऊपर भी सख्त सवालिया निशान हैं। उसके मैं मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ सिंसियर नहीं है। पहला पॉइंट अगर हम उठाते हैं कि तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले असम्बलियों से इस्तीफ़े दिलवाए खान साहब को। उसके बाद असम्बलियों से इस्तीफ़ों के बाद क्या हुआ, इलेक्शन डिले हुए, तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ हुई, तहरीक इंसाफ को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी गई। उसके बाद इमरान खान साहब को ये मशवरे दिए गए कि इदारों को डायरेक्टली हिट करें, लोगों के नाम लें। उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद इदारे उनसे ब्लैकमेल होके उनको रिलीफ देना शुरू कर देंगे, लेकिन वो चीज़ भी उल्टी पड़ी। उल्टा उनके ऊपर सख्तियाँ हुई, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और अब तक वो जेल में हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 8 फरवरी को लकीली अवाम ने उनके साथ जो है बेहद उनका साथ दिया, उनको सपोर्ट किया, लोगों ने वोट डाला और ठीक ठाक उन्हें वोट पड़ा। धांधलियों के बावजूद भी, मुख्तलिफ किस्म के हरबों के बावजूद भी तहरीक इंसाफ असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन के उभर कर सामने आई। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत को ये ऑप्शन दिया, इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को ये ऑप्शन दिया कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको वोट देंगे, क्योंकि उस वक्त तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी थी। अगर तहरीक इंसाफ मान जाती कि हम हुकूमत में बैठने के लिए तैयार हैं, हम हुकूमत बनाएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होते, वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ का होता, जो काबीना है वो तहरीक इंसाफ की होती, तो क्या आज मुझे बताएं जो तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त हालात हैं क्या वो होते? क्या इमरान खान साहब जेल में होते? क्या दीगर रहनुमाओं के ऊपर केसेस होते? क्या 9 मई के जो केसेस जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने की बातें हो रही हैं, आईनी तरमीम होती? क्या काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने की बातें होती? नहीं होती। ये इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ ताल्लुकात भी बहाल होते, मामलात भी तय होते, 9 मई भी जो है एडजस्ट हो जाता, तमाम चीज़ें एक तरफ हो जाती और तहरीक इंसाफ के लिए राहें हमवार होती, मज़ीद तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग होती। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जा रहा है, तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है, आईनी तरमीम लाई जा रही है, इमरान खान साहब को के गिर्द मज़ीद घेरा तंग करने की तैयारियां जारी हैं। इस वक्त लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है, तो उसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ को अब रिलैक्सेशन मिलेगी। इसमें रिलैक्सेशन की कोई बात नहीं है। देखें, जब भी ताकतवर हल्के एक पार्टी के लिए रास्ता बनाते हैं, एक पार्टी को बैक पे खड़े होके किसी तरह से सपोर्ट करते हैं, हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वॉक ओवर दे देंगे कि आप एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो गई। इस वक्त हुकूमत के पास जो कोalition गवर्नमेंट है उसके पास बहुत बड़ी ताकत आ चुकी है, जजेस उनके कंट्रोल में आ चुके हैं, तो इदारों को ये ख़दशा भी कहीं ना कहीं है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा जो हुकूमत है, इसमें शहबाज शरीफ साहब है, पीपल्स पार्टी, ये पुराने खिलाड़ी हैं। इमरान खान साहब तो जज्बाती हैं, उन्हें सियासत में अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, वक्त चाहिए उनको। ये जो लोग हैं, आसिफ अली जरदारी जो हैं, जो पीपल्स पार्टी की जो टीम है, जो मुस्लिम लीग नून की टीम है, ये बहुत पुराने सियासतदान हैं और इन्हें खेलना आता है। अगर तो इन्होंने अपनी जो एब्सोल्यूट पावर है इस वक्त, जो वज़ीर आज़म हैं,
उन्होंने अपनी पावर इस्तेमाल करना शुरू की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पे आके पावर इस्तेमाल करना शुरू हो गए, तो उन्हें इदारों की, ताकतवर हलकों की परवाह छोड़नी पड़ेगी। फिर उन्हें अल्टीमेटली वही चीज़ फेस करनी पड़ेगी जो इमरान खान साहब ने एक पॉइंट के ऊपर की थी कि ताकतवर हलकों को सुनना छोड़ दिया था। तो बुशरा बीबी को रिहाई देना, तहरीक इंसाफ के केसेस में कुछ रिलैक्सेशन, कोई मामलात को बेहतर करना, अगर तहरीक इंसाफ के लिए कुछ साइंस अगर आपके सामने आए तो इसका मकसद ये नहीं है कि कोई डील हुई है तहरीक इंसाफ की, कोई डील नहीं हुई, कोई मामला तय नहीं पाए, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई डील कर ली है, कोई आईनी तरमीम इस डील के नतीजे में पास हुई है या कोई और मामलात हैं। मामला सिर्फ एक है कि किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं देनी, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। तो ये बात याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, किसी की भी कभी भी हुकूमत आती है उसे एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। ये हाइब्रिड सिस्टम इसी तरीके से चलेगा। जो ताकतवर हलके हैं वो चाहते हैं कि उनके पास जो डोरे हैं वो उनके हाथ में हो। और देखें, इसमें फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उसका रीज़न देखें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिन्हें कहा जाता है वो ऑब्वियसली इदारे हैं। अब जो इंडिया है, इंडिया में भी एक इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट इदारे नहीं है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है हिंदुत्व ग्रुप्स, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है आरएसएस नैरेटिव। वहाँ पे क्यों पाकिस्तान के अगेंस्ट बात की जाती है इलेक्शंस में, वहाँ पे क्यों लोग जो है हिंदुइज्म को के नाम के ऊपर वोट देते हैं, वहाँ पे क्यों मुसलमानों के अगेंस्ट बात करने से जो पार्टी अगेंस्ट बात करती है उसको वोट्स मिलते हैं, क्यों? क्योंकि अवाम का जहन उस तरह से बनाया गया है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने उस तरह से चीज़ों को मैनेज किया है। अब हम आते हैं एक और मुल्क के ऊपर, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। वहाँ पे कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है? हम आए दिनों सुनते रहते हैं यहूदी लॉबी, यहूदी। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है यहूदी लॉबी। वो यहूदी लॉबी कौन है? वो ज़ायनिस्ट्स हैं। वो वही हैं जो लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं। क्यों अमेरिका अपने लोगों के ऊपर अरबों डॉलर नहीं खर्च करता जितने वो इजराइल को एड दे देता है? क्यों दुनिया में कोई भी इजराइल के अगेंस्ट तो अमेरिका नहीं होता? ऐसा क्या है इजराइल के पास? उनका नैरेटिव। जो भी पार्टी इलेक्शंस में खड़ी होती है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो प्रेसिडेंट बाइडेन हो, उनको यहूदियों के वोट्स की ज़रूरत है। न सिर्फ वोट्स की बल्कि फंडिंग की। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज आप उठा लें, टेक कंपनीज आप अपनी उठा लें, उसमें सबसे ज़्यादा कंपनीज किसकी हैं? इन यहूदियों की हैं, इन ज़ायनिस्ट्स की हैं। तो पूरी दुनिया में ये इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं और पूरी दुनिया में ये सारे मामलात होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो हम कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का रोल होना बुरा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का सिंसियर होना जो है वो होना चाहिए। उनका स्टेट के अगेंस्ट, अवाम के अगेंस्ट या अवामी उमंगों के अगेंस्ट होना बुरा है। इस्टेब्लिशमेंट का एग्जिस्ट करना, उनके रोल के ऊपर कोई कुछ भी कहता रहे, इनका रोल ख़त्म कर दिया जाए, आइन नहीं है, फला नहीं है, एक्सपायरी। देखिए, किसी के कहने से, मेरी ज़ात के कहने से कुछ नहीं होता। होता किस चीज़ से? फैक्ट से, हकीकत से, ऑन ग्राउंड रियलिटी से। ऑन ग्राउंड रियलिटी में पीपल्स पार्टी ने भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के रोल को तस्लीम किया है, इसीलिए वो आज इस सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर पीपल्स पार्टी भी उस रोल को एक्सेप्ट ना करती तो वो सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। इस आइनी तरमीम को पास करवाने में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबसे आगे थे। तो क्या इस आइनी तरमीम में लोगों को उठा के नहीं लाया गया? लाया गया, सबको पता है। किस तरीके से वोट दिए गए सबको पता है। तो किसने दिलवाए वो भी सबको पता है। फैसल वावडा साहब जो कब से कह रहे थे कि आईनी तरमीम पास हो जाएगी, आपको नहीं पता वो किसके आदमी हैं? बगैर पार्टी के वो सेनेटर बन जाते हैं। एमक्यूएम ने सपोर्ट कर दिया, पीपल्स पार्टी ने। सबको सब कुछ पता है। लेकिन बात यह है कि उनके किरदार को तस्लीम करना चाहिए। हकीकत है, हकीकत को तस्लीम करें। मैं ना मानूं से या कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान की सियासी हकीकत है। हाँ, जमहूरियत अगर स्ट्रॉन्ग होती है, सियासतदान इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो स्पेस नहीं देते। अगर इदारों को या एस्टेब्लिशमेंट को इतनी जमहूरियत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, शायद आज से 1-2 साल 1-200 साल बाद हो जाए,
تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اداروں کا رول نہیں ہے یا اداروں کا رول نہیں ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان کو اداروں کی ضرورت ہے اور اداروں کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ویڈیو کو میں یہاں پہ اینڈ کروں گا. میں چاہوں گا آپ اگلی ویڈیو بھی دیکھیں کیونکہ اگلی ویڈیو میں جو ٹاپکس رہ گئے ہیں ان کو میں کنکلوڈ کروں گا, ان کو اپڈیٹ کروں گا. تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں. میں اگلی ویڈیو میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے, شاہ محمود قریشی, زین قریشی کے حوالے سے اور دیگر جو پوائنٹس جو ہے وہ رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا. اس وقت اس ویڈیو کو میں اینڈ کرتا ہوں, اگلی ویڈیو پہ پھر کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.